Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. Today we will talk about, in this lecture, we will talk about continuous time convolution. In previous two lectures, we talked about discrete time convolution. Uh, Continuous time convolution is exactly analogous to discrete time convolution. The only difference is this, that today we will be having continuous time signals. Our input signal x of t and impulse response of the system h of t will be continuous time signals, and we are going to estimate the output y of t due to these two signals. So the method is exactly similar as we have already discussed in discrete time convolution. The difference is only in the type of signals, which are continuous. Xt is continuous and impulse response is also continuous. Otherwise there is no difference. वही मेथड, वही तरीका जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके के साथ हम इसको भी डिस्कस करेंगे. जो एग्जांपल्स हम इस लेक्चर में जिनके बारे में बात करेंगे उनको भी उसी तरह से सॉल्व किया जाता है जिस तरह से आपके पास डिस्क्रीट टाइम का केस में, जिस तरह से आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, हम डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर सिग्नल्स का ओवरलैप देखते हैं. if there is no overlap, then the result of convolution will be zero, but if there is some overlap, then we will have non-zero output, as the two signals जिनकी हम convolution जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, they if they overlap, then the result will be non-zero. So let's start our lecture. So continuous time convolution is defined like this: y of t is xt convolution ht. Xt is our input signal, ht is the impulse response of a continuous time system. So this is defined just like the discrete version of it. Y of t is xt and ht minus tau d tau, and the integral is, instead of summation, now we have an integral because now we are talking about continuous time cases. So the integral of integral is from minus infinity to plus infinity. So you multiply our two signals, x of tau, which is our input signal, and h of t minus tau, which is a reflected and shifted signal. ये reflection और shifting हम previous lecture में भी discuss कर चुके हैं कि when we have to perform convolution, तो हम एक सिग्नल को फिक्स्ड रखते हैं, दूसरे सिग्नल को हम उसका मिरर इमेज लेते हैं और फिर उसको शिफ्ट करते रहते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टिल प्लस इन्फिनिटी. और इस शिफ्टिंग के दरमियान हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इन सिग्नल्स का ओवरलैप एग्जिस्ट करेगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ओवरलैप इनका नहीं होगा. सो जहाँ पे इनका ओवरलैप नहीं होगा उस रीजन में हमारे पास कन्वोल्यूशन ऑपरेशन का रिजल्ट ज़ीरो होगा, और जिस जगह पे ओवरलैप एग्जिस्ट करता है, ओवरलैप होगा, वहाँ पे हमें सिर्फ नॉन ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा. So let's start our discussion with a simple example. Let's suppose we have a signal, input signal xt, which is non-zero only between points minus 1 and plus 1, and xt, the input signal in this region from minus 1 to plus 1, has an amplitude of 2. Similarly, our ht, which is impulse response of the system, this only exists from 0 to up till point 1, and its maximum amplitude is at 0, and that maximum amplitude is 2, and it is a decreasing function from 0 to 1. So this ht has a maximum value at t is equals to 0, and it only exists from t is equals to 0 to 1. So we have to compute
the convolution of these two signals, and we have to estimate the output y of t due to convolving these two signals, input signal with the impulse response. So as we have already discussed in the previous lecture that we used to flip one signal. हम एक सिग्नल जो है उसका मिरर इमेज लेंगे और फिर उसको शिफ्ट करेंगे बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, और फिर इस इनपुट सिग्नल के साथ वो पॉइंट्स देखेंगे कि कहाँ पे इनका ओवरलैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक जो है वो एल्गोरिदम या एक प्रोसीजर भी डिस्कस किया था डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन के लिए स्टेप फॉर्म में कि कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे भी उन्हीं स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इन दोनों सिग्नल्स को x ऑफ t को और h ऑफ t को, जैसे वहाँ पे हम ये करते थे कि ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास x ऑफ n और h ऑफ n होते थे, तो फर्स्ट स्टेप में हम उनको प्लॉट करते थे एज अ फंक्शन ऑफ k। सो x ऑफ k और h ऑफ k को प्लॉट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी x ऑफ t और h ऑफ t तो ओरिजिनल सिग्नल हैं। सो जब हमने इनकी कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करनी है तो हम इनको x टाउ और h टाउ के तौर पे प्लॉट करेंगे। सो दैट्स वेरी सिंपल, सिर्फ जस्ट आपने वेरिएबल जो है वो चेंज करना है। सो दिस इज xt वर्सेस t। अगर आप t की जगह पे इसको टाउ कर देंगे, x टाउ वर्सेस टाउ एंड h टाउ वर्सेस टाउ विल लुक एग्जैक्टली द सेम। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप ये था कि आपने इस फंक्शन को फ्लिप करना है, यानी इसका एक मिरर इमेज लेना है अराउंड दिस वर्टिकल एक्सिस या अराउंड t इज इक्वल टू 0। सो जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो वो एग्जैक्टली ये इस वक्त 0 से 1 तक एग्जिस्ट करता है। जब उसका मिरर इमेज लेंगे तो वो 0 से -1 इस तरह से आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। दैट वुड बी, सो दिस इज आवर h ऑफ t सॉरी ओरिजिनल h ऑफ टाउ, ओरिजिनल h ऑफ टाउ, जिसको हमने जस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाउ प्लॉट किया है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, सो इट एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to 1। जब हम h ऑफ माइनस टाउ लेंगे तो ये इसी सिग्नल का एक मिरर इमेज है जो 0 से -1 तक एग्जिस्ट करता है। सो ये जो सिग्नल है हमारे पास h ऑफ माइनस टाउ, इसको हम h ऑफ 0 माइनस टाउ भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको जस्ट फ्लिप किया है, इसके अंदर हमने कोई शिफ्ट नहीं की। सो शिफ्टिंग, सिंस शिफ्टिंग इन दिस सिग्नल इज 0, सो वी कैन आल्सो से दिस इज सेम एज h ऑफ 0 माइनस टाउ। Okay, so now we have to shift it at different points। ये जो previous slide में हमने देखा वो h ऑफ 0 माइनस टाउ था, इसके अंदर जो है वो shift जो है वो 0 की थी, but since we have to shift this signal तो हम इसको वेरियस t की वैल्यूज के लिए शिफ्ट करेंगे। सो h ऑफ t माइनस टाउ क्या होगा? h ऑफ 0 माइनस टाउ के केस में जो इसका लीडिंग एज था दैट वाज एट 0, लीडिंग पॉइंट वाज एट 0 एंड ट्रेलिंग पॉइंट वाज एट -1, जो प्रीवियस स्लाइड में आप h ऑफ 0 माइनस टाउ जो है वो देख चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको किसी भी अमाउंट t से शिफ्ट करेंगे तो जो इसका लीडिंग एज होगा दैट विल गो टू पॉइंट t, और जो उसका ट्रेलिंग एज होगा दैट विल बी t-1, बिकॉज टोटल जो इसकी ड्यूरेशन है वो 1 यूनिट की है। सो अगर इसका लीडिंग एज 0 पे है तो ट्रेलिंग एज -1 पे है। अगर लीडिंग एज जो है वो 5 पे है तो ट्रेलिंग एज वुड बी एट 4। अगर लीडिंग एज जो है वो -5 पे है तो ट्रेलिंग एज वुड बी एट -6, क्योंकि टोटल जो इसकी ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के लिए ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है दैट इज 1। सो h ऑफ t माइनस टाउ का मतलब ये है कि आपने t की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो h ऑफ t माइनस टाउ का मतलब ये होगा कि द लीडिंग एज ऑफ दिस सिग्नल विल बी एट पॉइंट t एंड इट्स ट्रेलिंग एज विल बी एट पॉइंट t-1। अ डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस टाइम केस एंड डिस्क्रीट टाइम केस, यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि t की आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। t जो है वो 0.3 भी हो सकता है,
0.7 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, -3.6 भी हो सकता है। सो कोई भी वैल्यू आप t की सिलेक्ट कर सकते हैं, रियल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। वेयर एज डिस्क्रीट के केस में ये होता था कि जब आप इस h ऑफ n-k को शिफ्ट करते थे डिस्क्रीट के केस में, तो आप सिर्फ इसको इंटीजर पॉइंट्स की शिफ्ट दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कंटिन्यूस का केस है और कंटिन्यूस सिग्नल जो है इसके अंदर t की तमाम वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो आप किसी भी अमाउंट से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि t जो है वो इंटीजर ही हो, आप t को किसी भी अमाउंट से, ये शिफ्ट है ये किसी भी अमाउंट से हो सकती है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट टाइम केस एंड अ कंटिन्यूस टाइम केस। ओके, सो नाउ लेट्स सपोज कि हमारे अब हम इन दोनों सिग्नल्स को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये ओवरलैप करेंगे, और जहाँ पे ओवरलैप करेंगे ऑब्वियसली वहाँ पे कन्वोलूशन का रिजल्ट जो होगा वो आपके पास नॉन ज़ीरो होगा, और जहाँ पे ये ओवरलैप नहीं करेंगे वहाँ पे कन्वोलूशन का रिजल्ट ज़ीरो होगा। सो दिस वाज आवर ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ टाउ, जो कि -1 से लेके 1 तक एग्जिस्ट करता था। इसको हमने कुछ नहीं किया, ये वही सिग्नल है जो, क्योंकि हमने एक सिग्नल को सिर्फ जो है वो रिफ्लेक्ट और शिफ्ट करना होता है, दूसरे को फिक्स रखते हैं। सो दिस इज अवर इनपुट सिग्नल x टाउ जो फिक्स्ड है। दिस एग्जिस्ट फ्रॉम -1 टू +1, और इस दौरान इसका जो एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे ये नॉन ज़ीरो है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 है। अब अगर यहाँ पे हम इस सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं, ये अभी लास्ट लेक्चर जो स्लाइड में हमने बात की कि h ऑफ t माइनस टाउ का मतलब ये होता है कि जो इसका लीडिंग एज होगा वो एट पॉइंट t होगा, तो ट्रेलिंग एज जो होगा वो एट t-1 होगा। अब लेट्स सपोज इस t की वैल्यू हम इस केस में सिलेक्ट करते हैं एज 5, सो दिस विल बी h ऑफ 5 माइनस टाउ। अब h ऑफ 5 माइनस टाउ में जो लीडिंग पॉइंट है इसका दैट वुड बी एट 5, और जो ट्रेलिंग पॉइंट है दैट वुड बी एट 4। एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इस सिग्नल और इस सिग्नल के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे ये दोनों सिग्नल जो हैं इनके नॉन ज़ीरो पॉइंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हों। सो ओवरलैप इज़ ज़ीरो। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चीज़ कैलकुलेट करें x ऑफ टाउ h ऑफ 5 माइनस टाउ, तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। ज़ीरो क्यों आएगा? क्योंकि जहाँ पे x टाउ एग्जिस्ट करता है वहाँ पे h ऑफ 5 माइनस टाउ की वैल्यू ज़ीरो है, और जहाँ पे h ऑफ 5 माइनस टाउ एग्जिस्ट करता है वहाँ x टाउ की वैल्यू ज़ीरो है। सो अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ पे ये नॉन ज़ीरो है वहाँ पे चूँकि ये सिग्नल ज़ीरो है तो ओवरऑल रिज़ल्ट आपके पास इस रीजन में भी ज़ीरो आएगा, और जहाँ पे ये नॉन ज़ीरो है वहाँ पे x ऑफ टाउ ज़ीरो है तो इस रीजन में भी रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आएगा, और बाकी पॉइंट्स पे तो वैसे दोनों ही ज़ीरो हैं, सो इस वजह से वहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। सो x टाउ h ऑफ 5 माइनस टाउ का जो रिज़ल्ट होगा वो from minus infinity to plus infinity that would always remain as zero। so इसका मतलब ये हुआ, यानी t जो आपने यहाँ पे पुट किया था t की वैल्यू 5 थी, सो y ऑफ t या y ऑफ 5 विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि t इज इक्वल्स टू 5 के लिए जो आउटपुट आपके पास आ रही है वो 0 आ रही है। और 0 क्यों आ रही है? 0 इस वजह से आ रही है कि जहाँ पे जब आप h ऑफ 5 माइनस टाउ जो है, जो आपने ये प्लॉट किया हुआ है, ये जहाँ पे नॉन ज़ीरो है वहाँ पे इनपुट सिग्नल जो है वो ज़ीरो है, और जहाँ पे इनपुट सिग्नल नॉन ज़ीरो है वहाँ पे ये h ऑफ 5 माइनस टाउ जो है ये ज़ीरो है। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आप, ये तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया ये पॉइंट, आप कोई भी और पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट ये क्लियर करने के लिए कि कन्वोलूशन का रिजल्ट सिर्फ वहाँ पे नॉन ज़ीरो आएगा जहाँ पे इनके ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप आपस में ओवरलैप करते होंगे। जहाँ पे ओवरलैप नहीं करते होंगे वहाँ पे कन्वोलूशन का रिजल्ट ज़ीरो आएगा। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जब हम एक सिग्नल को रिफ्लेक्ट करते हैं अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, तो फिर उसको हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक उसको शिफ्ट करते रहते हैं, और ये देखते हैं कि किस रीजन में उसका हमारे इनपुट सिग्नल के साथ ओवरलैप एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे ओवरलैप एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे कन्वोलूशन का रिजल्ट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। सो नाउ अगर हम
t को 0 अज्यूम करें, यानी कि आपने इस सिग्नल को सिर्फ रिफ्लेक्ट किया, कोई शिफ्ट नहीं किया। तो अब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान जो है वो ओवरलैप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये x टाउ भी -1 से +1 तक नॉन ज़ीरो है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, और ये जो सिग्नल है h टाउ ये भी 0 से लेके -1 तक जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसका भी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है एट t = 0 वो 2 के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करूं x ऑफ टाउ और h ऑफ 0 माइनस टाउ, या 0 माइनस टाउ इज सेम एज h ऑफ माइनस टाउ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। x ऑफ टाउ h ऑफ माइनस टाउ विल बी 4 एट t = 0, क्योंकि ये सिग्नल भी 2 था इस पॉइंट पे, x ऑफ टाउ भी 2 था और h ऑफ माइनस टाउ भी 2 था, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 4, और ये 0 से -1 के रीजन में ये जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। इनका जो प्रोडक्ट है ये 0 से -1 की रीजन में एग्जिस्ट करता है। और आपने जब इसकी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आपने ये वाला सारा एरिया कैलकुलेट करना है जो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है। सो इनके ओवरलैपिंग रीजन का एरिया आपने कैलकुलेट करना है, एंड दैट विल गिव यू y ऑफ 0। और उसके लिए बेसिकली वही जो इंटीग्रल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि x टाउ h ऑफ माइनस टाउ या h ऑफ 0 माइनस टाउ को आपने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और वो आपको y ऑफ 0 जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो अगर आप इस केस के लिए ये इंटीग्रल इंटीग्रेट करेंगे, ये इस रीजन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इस ट्रायंगुलर रीजन जो आपको ये शेडेड रीजन नज़र आ रहा है, इसका एरिया जो आपके पास आएगा वो 2 के इक्वल होगा। सो इसका मतलब ये है कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, और इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई इसमें तो जब हम ऑनलाइन सेशन जो इसका जब लेंगे तो उसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल। बट इस इंटीग्रल को कैलकुलेट आप करेंगे तो y ऑफ 0 का आंसर जो है वो आपके पास 2 के इक्वल आएगा। सो नाउ दिस स्लाइड shows you different shiftings for h of t माइनस टाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t। मसलन फॉर एग्जांपल आप t की वैल्यू को अगर -1 सेलेक्ट करते हैं, सो अगर t इज़ -1 तो इसका मतलब है h ऑफ t माइनस टाउ का जो लीडिंग एज है वो -1 पे है, जो इसका ट्रेलिंग एज है वो -2 पे है। रिमेंबर कि जो हमारे पास x ऑफ टाउ है वो -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है। सो अब इस केस में अगर t की वैल्यू -1 है तो इनके दरमियान, इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है, क्योंकि ये सिग्नल जहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये x टाउ वहाँ से स्टार्ट होता है, ये -1 पे ख़त्म हो जाता है और ये जो है x टाउ -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो जस्ट अब यू कैन से 1 पॉइंट का ओवरलैप है, लेकिन चूंकि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात कर रहे हैं तो 1 पॉइंट ओवरलैप मीन्स नथिंग फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। So next case is t is equals to -0.5. When t is -0.5, so it means कि h of t minus tau का leading edge जो है that is at -0.5 और जो इसका ट्रेलिंग एज है that is at -1.5। अब इस केस में ये वाला जो -1 से लेके -0.5 तक का रीजन है, यहाँ पे ओवरलैप एग्जिस्ट करता है बिटवीन h ऑफ t माइनस टाउ एंड x टाउ, और इस वजह से यहाँ से आपके पास जो है वो कोई ना कोई नॉन ज़ीरो आंसर जो है वो आपके पास इस कन्वोल्यूशन का आएगा। ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी जो प्रोबेबली 1 पॉइंट समथिंग की इक्वल होगी। उसके बाद ये वो वाला केस है जो हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 तो लीडिंग edge is at t is equals to 0, trailing edge is at t is equals to -1। so -1 से 1 तक x भी एग्जिस्ट करता है, सो ये वाला रीजन -1 से 0 तक इनका ओवरलैपिंग रीजन है, और इसके लिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो द आंसर यू विल गेट विल बी इक्वल्स टू
2. नेक्स्ट शिफ्ट इज t इज इक्वल्स टू 0.5. जब t इज इक्वल्स टू 0.5 होगा तो लीडिंग एज ऑफ h ऑफ t माइनस टाउ विल बी एट 0.5, ट्रेलिंग एज इज एट माइनस 0.5, और चूंकि x ऑफ टाउ -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है, सो इनके दरमियान यू कैन से एक कंप्लीट ओवरलैप है। यानी कंप्लीट ओवरलैप को लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था कि जो दो सिग्नल्स हमारे पास होते हैं जिनकी हम कन्वोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उनमें एक सिग्नल ऐसा होता है जो दूसरे से उसकी ड्यूरेशन कम होती है। अब यहाँ पे अगर हम वो देखें तो एच ऑफ टाउ ऐसा सिग्नल है जिसकी ड्यूरेशन शार्ट है। तो जब शार्ट ड्यूरेशन वाला सिग्नल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले सिग्नल के तमाम पॉइंट्स के साथ ओवरलैप कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट ओवरलैप केस। सो ये कंप्लीट ओवरलैप केस t इज इक्वल्स टू 0 वाले इस सिनेरियो में भी था, और t इज इक्वल्स टू 0.5 वाले सिनेरियो में भी है, इवन t इज इक्वल्स टू 1 वाले सिनेरियो में भी कंप्लीट ओवरलैप है। सो इस केस में भी अगेन आप इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली जो आपका इंटीग्रल होगा वो -0.5 से लेके +0.5 तक आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है। और अगेन आपके पास आंसर जो है वो 2 आएगा। इस वजह से 2 आएगा क्योंकि अभी भी ये कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहा है, जो कि t इज इक्वल्स टू 0 वाला केस भी था, यहाँ पे भी ये कंप्लीट ओवरलैप है इन दो सिग्नल्स का। सो यू विल गेट द सेम आंसर। सिमिलरली t is equals to 1 वाले केस में लीडिंग एज इज एट 1 एंड ट्रेलिंग एज इज एट 0। सो चूंकि x t -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है, सो अगेन देयर इज अ कंप्लीट ओवरलैप। आपने ये वाला रीजन जो है जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये एरिया कैलकुलेट करना है, और ये एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे अगेन द आंसर विल बी इक्वल्स टू 2, बिकॉज अगेन दिस इज अ कंप्लीट ओवरलैप। उसके बाद ये नेक्स्ट केस है व्हेन t इज इक्वल्स टू 1.5, लीडिंग एज इज एट 1.5, ट्रेलिंग एज इज एट -1.5। अब ये कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, क्योंकि इस h टाउ का कुछ पोर्शन बेसिकली 1 से लेके 1.5 तक का जो पोर्शन है वो आगे जा चुका है। तो सिर्फ ओवरलैप जो है वो 1 से लेके 0.5 से लेके 1 तक है। सो ये ओवरलैप बहरहाल अभी भी है सही, अगर से वो कंप्लीट ओवरलैप नहीं है। सो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू विच वुड बी समवेयर which would be less than 2, because 2 तो complete overlap के केस में आ रही थी। सो ये कोई 1 होगी या 0.78 समथिंग, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट केस इज व्हेन t इज इक्वल्स टू 2। जो व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, तो लीडिंग एज ऑफ दिस फंक्शन विल बी एट 2, ट्रेलिंग एज विल बी एट 1। there is no overlap now because x tau exists from -1 to +1। so चूंकि कोई overlap नहीं है, तो again the answer of this convolution will be equals to 0 and any value which is greater than 2। अगर हम greater than 2 कोई भी वैल्यू ले लूँ तो इसका मतलब है ये h जो t माइनस टाउ है ये मज़ीद इस साइड पे चला गया है। सो इससे आगे जहाँ पे भी चला जाएगा तो ओवरलैप जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो वो तमाम वैल्यूज़ के लिए भी आपके पास y_t का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं t की वैल्यू लेस देन -1 ले लूँ, तो इस केस में लेस देन -1 का मतलब है कि h t कहीं इससे भी इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है। सो इसके लिए भी अगेन देयर इज़ नो ओवरलैप पॉसिबल between h of t minus tau and x tau। so the result of convolution will again be equals to 0। so सिर्फ -1 से लेके 2 तक के रीजन में कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो नॉन ज़ीरो है। ये जैसे यहाँ से ये y of t आपको शो कर रहा है कि ये सिर्फ -1 से लेके 2 तक के इस रीजन में इस कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है ये नॉन ज़ीरो है। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0.5 एंड t इज इक्वल्स टू 1.5 वेयर देयर इज अ कंप्लीट ओवरलैप बिटवीन h of t माइनस टाउ एंड x टाउ। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पार्शल ओवरलैप है, जैसे t इज इक्वल्स टू -0.5 एंड t इज इक्वल्स टू 1.5 वाले पॉइंट्स हैं। सो जब चूँकि ये पार्शल ओवरलैप है तो यहाँ पे जो आपके पास इसका रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़ाहिर कम आएगा। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, जैसे t इज इक्वल्स टू 2 या उससे तमाम वो पॉइंट्स जो 2 से बड़े हैं। इसी तरह से t इज इक्वल्स टू -1 या तमाम वो पॉइंट्स जो
-1 से छोटे हैं उनके लिए कोई ओवरलैप एग्जिस्ट नहीं करता। सो उस वजह से उनके दरमियान जो रिज़ल्ट आएगा उन रीजन्स के लिए वो ज़ीरो आएगा। सो वाई टी इज़ ओनली नॉन ज़ीरो बिटवीन -1 एंड +2। Okay, so this is another example. ठीक है, second example you can say, now we have x of tau which is a unit step function. x of tau is basically u of tau, यानी tau की तमाम वैल्यूज जो 0 या उससे बड़ी हैं उसके लिए इसका एम्पलीट्यूड 1 है, और वेयर एज h of tau is defined as e raised to power minus t over rc divided by rc. so ये हमारे पास जो h of tau है इम्पल्स रिस्पांस, इसकी वैल्यू 0 पे 1/RC है, और उसके बाद जो है ये इसकी वैल्यू डिक्रीज करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो डिक्रीज जो है वो e raised to power minus t over RC के इक्वल है। सो इन दोनों के कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो अगर हम जो फार्मूला है उस फार्मूला के अंदर जो कन्वोल्यूशन का फार्मूला है, अगर आप फार्मूला के अंदर जो है ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास x tau h t minus tau d tau you have to perform this integration from -infinity to +infinity। सो अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो u tau e raised to power minus, अच्छा ये h tau जो है जो इम्पल्स रिस्पांस है ये भी सिर्फ टाउ की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है दिस इज आल्सो बीइंग मल्टीप्लाइड विद यू टाउ और यू टी माइनस टाउ, क्योंकि ये तो ज़ाहिर हम एच टी माइनस टाउ ले रहे हैं तो इस वजह से हम इसको वी विल हैव टू राइट इट यू टी माइनस टाउ। सो एक्स टी इज यू ऑफ टाउ और ये दिस इज एच टी ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस टाउ ओवर आर सी डिवाइड बाई आर सी यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। सो इस इंटीग्रल को बेसिकली आपने सॉल्व करना है टू परफॉर्म the convolution of these two signals, and again this is very easy graphically भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास h tau है, अगर हम इससे h of minus tau लें so h of minus tau क्या होगा कि ये इस वक्त जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव टी टाउ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, h of minus tau will exist for negative tau, और t की कोई भी ऐसी वैल्यू जो लेस देन ज़ीरो होगी वो इसको मज़ीद लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगी। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो इसकी t की लेस देन ज़ीरो हैं ये इसको इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगी, और उस केस में x टाउ और इसके दरमियान कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। चूँकि कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस केस के लिए जो है वो आपके पास कन्वोल्यूशन का रिजल्ट हमेशा जो है वो ज़ीरो होगा। सो वाई टी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो। लेकिन अगर आप टी की ऐसी वैल्यूज़ लें जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, तो अब लीडिंग एज इसका टी पे है और ये टी की वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ भी पॉजिटिव हो सकती है, 1 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 0.5 हो सकती है। नाउ दीज टू सिग्नल्स ओवरलैप, क्योंकि एक्स ऑफ टाउ भी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक 1 है और ये वाला सिग्नल भी अब इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, टी की कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। सो इनके दरमियान ओवरलैप एग्जिस्ट करता है और अब इनकी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो नॉन ज़ीरो आएगा। सो फॉर टी लेस देन ज़ीरो देयर इज़ नो ओवरलैप, सिंस देयर इज़ नो ओवरलैप सो द रिजल्ट ऑफ कन्वोल्यूशन विल रिमेन एज ज़ीरो। फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो देयर इज़ सम ओवरलैप और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। Okay, so these are the same results which we have already discussed. For t less than 0, v out is equals to 0. For t greater than 0, we have to perform this integral from minus infinity to plus infinity. U of tau e raised to power minus t minus tau over rc divided by rc u of t minus tau. But because the signal xt only exists from 0 to infinity, so minus infinity से 0 convolution perform करने का कोई advantage नहीं है। वही बात है जो हम already ग्राफिकल फॉर्म में भी पहले कर चुके हैं कि जब आप h ऑफ माइनस टाउ लेंगे और उसको t की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए शिफ्ट कर देंगे तो देयर इज़ नो ओवरलैप पॉसिबल बिटवीन h ऑफ t माइनस टाउ एंड x टाउ, सो द कन्वोल्यूशन रिजल्ट विल रिमेन एज ज़ीरो। सो इस वजह से ये इंटीग्रल जो है वो आप सिर्फ ज़ीरो से किसी t तक परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि u ऑफ t माइनस टाउ के केस में जो जो आपके h ऑफ t माइनस टाउ जो है वो एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम t तक, जो हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम वो t तक सेलेक्ट करता है। सो यू हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to
टी, चूँकि हम पॉजिटिव रीजन की बात कर रहे हैं टी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो u ऑफ टी इस रीजन में 1 है, सो इसको 1 अज्यूम किया जा सकता है। u ऑफ टी माइनस टाउ इज आल्सो 1, सो जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस टाउ ओवर आर सी। इसको इंटीग्रेट करना है, 1 ओवर आर सी इज कांस्टेंट, यू कैन राइट आउटसाइड, सो इसको अगर आप इंटीग्रेट करें और ये लिमिट्स पुट करें तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। सो आपके पास आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वी आउट इज़ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी यू ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि u ऑफ टी लिखने का मतलब क्या है कि चूँकि u ऑफ टी लेस देन 0 के लिए 0 होता है, सो अगर हम v आउट देखेंगे t लेस देन 0 के लिए तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज u ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0, और पॉजिटिव के लिए u ऑफ टी 1 होता है, तो बाकी यही वाला आंसर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर सी। सो दिस वाज all about the continuous time convolution about today's lecture। ये बिल्कुल सिमिलर है, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट हैं जो हम डिस्क्रीट में डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह से हम सिग्नल्स को शिफ्ट करते हैं, उसी तरह से हम ओवरलैपिंग देखते हैं किन रीजन्स में ओवरलैप कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज़ कि वहाँ पे हमें एक सम्मेशन परफॉर्म करनी पड़ती है और यहाँ पे हम एक इंटीग्रल परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ वन डिफरेंस। अदर डिफरेंस इज़ दैट कि जो शिफ्ट है जिससे आप अपने सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, तो वो शिफ्ट डिस्क्रीट के केस में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ की हो सकती है, वेयर एज इस केस में चूँकि टी कंटिन्यूस वेरिएबल है तो वो शिफ्ट जो है वो कोई भी रियल नंबर की शिफ्ट जो है वो आप पास हो सकती है। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।